जी તમારા સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. સહારા વિના બીજ ઊંઘતો નથી. હરિઓજી દાદાજી, હરિયોજી દાદાજી તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય લૂટતો નથી. જગત કુસંગી જગો, જગત કુસંગે જ દુઃખ કેવલ સત્સંગી જસો. કેવલ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનો હસતો મુખ, દાદાજીનો હસતો મુખ શમની દર્શન થાતા સુખ. શ્રવણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મારાજી, હીરા મોતી માલાજી સમૃદ્ધ સતિયા વિના ડગલું તરતું નથી. સમૃદ્ધ સત્યા બીના દલડો ઠરતો નથી. હરિઓજી દાદાજી, હરે ઓજી દાદાજી તમારા વિના ક્યાંય ઘૂટતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય લૂટતો નથી. દુનિયા ભરમાં લોકો લાગે, દુનિયા ભરમાં લોકો લાગે સત્સંગ વિના સુનો લાગે. સત્સંગ ભીના સુનો લાગે. બિરવો દિવસ રાત જાગે, ફિર હું દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ વાંગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો અતિક્રમણાજી, રોકો અતિક્રમણાજી આતમ રમના વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. આતમ રમના બીના ક્યાંય રૂચતો નથી. હરિઓજી દાદાજી, હરે ઓજી દાદાજી હરિઓજી પ્યારાજી, હરે ઓજી પ્યારાજી હા. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. किसी कोई है उधर? नहीं, क्यों? खुशी दुकान पर है और करिश्मा खेलने के लिए गई है वापस. ओके, तो त्रिमंत्र मामी बोला, ममता कैन यू हाँ बोलो त्रिमंत्र? आई मीन हाँ सॉरी, नहीं नहीं, नौ कलम, नौ हाँ कलम. ओके, ऑल्टरनेट करो मोनिका. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેદારી છે વાત માનો, કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે ના દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદન એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેદારી છે વાત માનો, કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યેના અનુમોદન
એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ साध्वी के आचार्य नो अवनवाद, अपराध, अविनय ना करने की परम शक्ति आपो. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા के સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ના બોલી જાય, ના બોલવા ઈચ્છાય કે બોલવાના પ્રત્યે ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુરુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી પુરુષ કે નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણો ના કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્માનું પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવિત અથવા મૃત્યુ પામેલાનું કોઈનું કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ, અપરાધ, અવિનય ના કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ओके, तो ममता जी त्रिमंत्र बुलाइए. ममता हाँ त्रिमंत्र बुलाइए. हाँ. नमो वित्रागाय, નમો वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, નમો नमो અરિહંત, अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, નમો नमो સિદ્ધાંત, सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, નમો नमो આય, आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, નમો नमो વત્સાય, वत्सायाणम, नमो लोके सव्वसाहुणम, નમો લોકે लोये सब सावणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचन मुकारो, सव्व पावप्पणासनो, સર્વ सर्वपावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसे, મંગલાન, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम. परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ नमः શિવાય. शिवाय. जय सच्चिदानंद. Jai Satchidanand. Hey Monica, you to say all the prayer, all the prayers. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદાજી, આપણે કૃપાથી વ્યક્તિને આપણી હેલ્પ કરી ताकि मेरा शरीर भी साधन और सत्संग में हमेशा बिल्कुल सिंसियर रहूं. मैं गुरु स्वागत को अपने पेशेंट से हमेशा दूर रहूं और मुझे भी बिना किसी लक्ष्य न सके मुझे परम से पता है और अपनी आत्मा को प्रेरणा तरफ की सेवा में जो कि मानव धर्म मैं अपने कर्म और अन्य सभी लोगों के साथ मॉरल प्यार बढ़ेगी. दादा भगवान से उससे मांगने पर
दादा भगवान, मैं आगे मैं उनको आंखों से जवाब दूंगी। कृपया इस समय मुझे शक्ति प्रदान करें। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई नहीं समझने में जो बाधाएं आती हैं, वो भी आपको आप ऐसी कृपा करें कि मुझसे मेरा दुख न पता आगे टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम खुशी दें। Study prayer. हाँ, बोल दिया दादा अभी। Oh, सुनाई नहीं देता है। ओके ओके, अनुज है। अनुज बाहर चला गया। ओके, तो आप करिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे करेंगे अच्छे जय अच्छे। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका, सेपरेशन प्रेयर। हाँ जय સચ્ચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। ओके, चलो, आज तो कोई है नहीं, आप अकेले। वेरी गुड। तो कैसा रहा ये वीकेंड में अपना सिंसियरिटी मम्मी के साथ, स्टडी में? मोनिका, सुनाई देता है? हाँ जय सच्चिदानंद। इस वीकेंड में आज आज मम्मी के साथ खाने में थोड़ी चिक चिक हुई थी। बाद में मैंने सॉरी बोल के वापस खाना खा लिया था। ओके, स्टडी में कैसा रहा आज ये वीकेंड में? स्टडीज में इस वीकेंड में मैंने मैथ्स की पढ़ाई नहीं की, बट मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की थी। जब मैथ क्यों नहीं किया था? मैंने सोचा आज कर लूंगी, इसलिए। अभी मैथ कब करने का है? मैथ्स मैं कल से स्टार्ट करूंगी। ओके, उस स्केड्यूल में लिखा है या? हाँ कल पूरा मैथ्स ही है, इसलिए कितना हॉलीडे टाइम है। मिल? ओ, कल हॉलीडे। ओके ओके, वेरी हाँ गुड। ओके, तो आपका 3 दिन हैप्पी था? हाँ 3 दिन हैप्पी, 2 दिन हैप्पी थी, बट आज थोड़ी हैप्पी नहीं थी। ओके, आज छुट्टी है कि कल से छुट्टी है? कल छुट्टी है। नहीं अभी छुट्टी है, स्ट्रेटली पब्लिक एग्जाम को स्कूल है। ओ, सारा वीक ऑफ है? हाँ ओ, वेरी गुड। मोनिका, दादा आपकी वॉइस कट गई थी इसलिए। आई नो, आई हैड सम प्रॉब्लम है। ओके, क्या किट हुई थी मम्मी के साथ? आज मम्मी ने सुबह नाश्ता बनाया था, तो मुझे उसके साथ दही के साथ खाना पसंद है। तो दही उस समय नहीं था, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने खाना आधा ही खाया। इसमें कौन कुछ क्या बनाया था? उसे वेजिटेबल राइस। वेजिटेबल राइस। और आपने किसके साथ खाया बाद में? बाद में मैंने ऐसे ही खाया। ऐसे का। ए ममता जी, हाँ, आप सब खाते हैं कि आपको भी मैं सब खाती हूँ। सब सब्जी खाते हैं? हाँ, तो इन लोग क्यों नहीं खाते? मुझे मेथी पसंद नहीं, बाकी सब खा लेती हूँ।
क्या पसंद नहीं किया है? मेथी, मेथी के पत्ते आते हैं ना। हाँ तो आप जब हाँ मेथी की पत्ते, वो तो हाँ, आप कुकिंग में नहीं यूज करते? रेयरली यूज करती हूँ। ओ भगवान, आपका बैग। मेथी, मेथी के दाने यूज कर लेती हूँ, मैं मेथी के पत्ते पसंद नहीं। तो खाने में तो डालना मांगता है ना, कभी पराठा बनाते हैं कि उसमें नहीं डालते? हाँ, वही बहुत रेयरली यूज करती हूँ। ओके। दूसरा सब करेला बरेला सब खाते हैं, लौकी? हाँ, सब तो खा लेती। तो इन लोग क्यों नहीं खाते? किसने स्मॉल किया उन लोग को? पता हाँ? नहीं, खा क्यों? लेंगे दादा, अभी स्टार्ट करेंगे थोड़े थोड़े। आपको तो आप तो मामी है ना, तो डंडा नहीं लेके मामी का भी डंडा नहीं लेते थे, वो प्रॉब्लम है मेरे ना। यहाँ आते हैं तो सब खा लेते हैं, करिश्मा को डांट के खिला देती हूँ, सब खा लेती है वो। ओ तो घर में क्या प्रॉब्लम है? मम्मी मम्मी को लिसन नहीं करते? शायद डरती नहीं होगी मम्मी से। तो आप मम्मी को टेक्निक बताओ ना। अबे अनुज भी सेम ही है, अनुज मेरे यहाँ डरता नहीं है, और जब वो बुआ के वहां चले जाता वहां खा लेता है, और मेरे हाथों से नहीं खाता है। तो अभी ट्रांसफर करना पड़ेगा। अपना महेश जी, आपको मालूम है दिनेश एंड जयश्री शाह ये मदुराई में है? हाँ 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 उन लोग का घर में क्या रिवाज है मालूम है? हाँ कि उन लोग को बच्चे काका के जहाँ बड़े होते हैं, और काका का बड़े जो बच्चे उन लोग को होता अच्छा, है, तो इन लोग को ट्रांसफर पहली करना पड़ता है। पहली बार सुना। हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम टॉक मधुर, वो अभी आते नहीं है जयश्री बहन, लाइक आई वांट टू आस्क हिम, नेक्स्ट टाइम मदुराई जाए प्लीज फाइंड आउट कि उन लोग कैसे अच्छा अच्छा। कैसे टेक्निक करते हैं। आई डोंट नो दीपक जी को मालूम है कि नहीं, पर उस एक दफा मेरे को बताया था कि सही है दिनेश भाई, जयश्री बहन, उनके हाँ लड़के उनके चाचा के घर बड़े हुए और उनके राइट चाचा के लड़के इनके घर बड़े हुए। राइट। वो उसको व्हाट इज साइंस बिहाइंड दैट, को याद है? हाँ। उसको पूछा कभी, दिनेश भाई को पूछना कि व्हाट वाज साइंस बिहाइंड दैट। तो पूछना पड़ेगा। या हमको बताया था उन लोग का वेरी शॉर्टली। ये जयश्री बहन आ आ गए आ गए। गए। जयश्री बहन बताइए। जयश्री बहन, શું બતાવું? તમને હિન્દી આવડે છે ને? ફાવે છે બોલવાનું? હા, બધું ફાવે. ઓકે, તો અમારી વાત થતી હતી આપણે ચિનાઈના बच्चे है ना, तो तो जब ये इसकी मामी है, अनुज का नाम है ना, मामी है, मम्मी के जाते थे सब खाते हैं, घर पे नहीं खाते। तो एक दफा आपने दिनेश भाई ने बताया था कि आपका बच्चे काका के पास से बड़ा होता है, और वाइस वर्सा, तो उसके उसके वो पद्धति बताओ हमको। महेशान जी आवाज आवे? ઓ અવાજ આવે છે. महेशान जी आवाज દિનેશભાઈ ને आवे? हाँ, દિનેશભાઈ ને જ આપું છું. દિનેશભાઈ જોડે વાત કરો બરાબર. આપું ओके, છું वेरी એમને. गुड वेरी गुड। મારે ત્યાંથી અવાજ આવે यस, તમારે ત્યાં છે આવે છે। છે? શેનો આવતો છે? पंखो છે, पंखो चालू છે? પંખો ચાલુ છે, થોડી जय ગરમી છે. सच्चिदानंद। जय सचिदानंद જય दिनेश भाई। સચ્ચિદાનંદ ભાઈ, જય बोलो સચ્ચિદાनंद। साहब, जय सच्चिदानंद। हाँ, अभी सच्ची भाई। बात हो रही थी कि देखो ये हाँ, दो हाँ। बच्चे हैं ना, मोनिका और करिश्मा, वो घर हम्म, पे कुछ नहीं खाते, और सब कुछ सर्टन थिंग नहीं खाते, और वो नीचे मामी है, मामी के घर जाते हैं तो सब खाते हैं। तो हमने हम्म, बताया कि आपने हमको बताया था कि हम्म, आपका घर में रूल है कि आपका हम्म। बच्चे हो काका की घर बड़ा होता है और वाइस वर्सा। तो उसमें क्या आपका क्या पद्धति था, और जरा बताया उसका फायदा क्या हुआ? ये फायदा तो एक हुआ कि हमारा सबका प्रेम इतना रहा। जब भी बच्चे माँ के साथ में रहता है
तो माँ का प्रेम ज्यादा है तो थोड़ा बिगड़ जाता है कई दिनों से। लेकिन वो चाचा जी के पास में रहेगा तो परफेक्ट रहेगा और बराबर भी काम करेगा और बिजनेस में भी सबकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। किसी को गलत करने का काम नहीं लगेगा। वो माँ बाप के साथ में बच्चा रहेगा तो लेकिन जब चाचा के पास में रहेगा तो कभी कोई जिंदगी में कभी कुछ गलत करने का सोचेगा ही नहीं। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से चलेंगे और इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहता है सबका और बहुत अच्छी तरह से चलता है। और जो दादा का वाक्य है, ऑनेस्टी और सिंसियरिटी, वो सबको पास में है। इनकी वजह से आज भी हम एक पोजीशन पर है। आज भी धंधा हमारा बढ़ रहा है, हम कम करना चाहते हैं लेकिन बढ़ता है। ये सब अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। सब लोग अपनी अपनी ऑफिस संभालते हैं और हम सबको ध्यान देते हैं सबके ऊपर और सब लोग अच्छी तरह से करते हैं। बोलिए तो साहब। क्या कौन सा एज में आप उधर रह के वापस आपके घर कितना एज आते हैं वापस? नहीं, ये पहले से ही जब से बच्चा थे तो हमारे पास में पढ़ते थे। मदुरई में मेरे पास में भाई का बच्चा किसी बड़ा, वो सब मेरे पास में पढ़ते थे। जब पढ़ के तैयार हो गए तब एक एक भाई के पास में जिसकी जहाँ पोजिशन थी, जिसका कितना नॉलेज था उस हिसाब से हमने सबको डाइवर्ट कर दिया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। दीपकांत जी, मरेशान जी, कुछ क्वेश्चन है दिनेश भाई को? नो, क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं, मगर क्या है ये भाई। आपको कहाँ से समझ आई? किसी ने बताया कि कैसे हुआ? नहीं, हमारे जो बड़े भाई थे ना, जो हमारे लीडर टोटल, उसने ये सब बातें बताई थी। अच्छा। हम 5 भाई हैं, सबसे बड़े हैं और हम छोटे थे तब हमारे मदर फादर एक्सपायर हो गए थे। तो बड़े भाई के पास में हम खड़े हुए, तैयार हुए। तो हम 5 भाई 3 बहनों का सबकी शादी बड़े भाई ने करवाया। उसके बाद में हमारे सभी बच्चों का, सबको 3 3 बच्चे, वो भी सब बड़े भाई ने करवाया। और अभी लास्ट ईयर वो बड़े भाई एक्सपायर हो गए 90 ईयर्स की एज में भी। वेरी गुड। तो ममता जी, आपको ये दिनेश दादा को कुछ पूछने का है? मोनिका? नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं आता है? ये तो बहुत, ये कभी सुना ही नहीं था। एक दफा दिनेश दादा ने हमको बोला था तो हमको याद आ गया था। बहुत अच्छा। हाँ। बोलो बेटा। सोचो, कुछ पूछने का जय नहीं, ये तो बहुत। सच्चिदानंद बेटा, बोलो जय सच्चिदानंद। ओके, जय सचिदानंद दिनेश भाई, थैंक यू जय वेरी मच। सच्चिदानंद, नहीं जय सर। सच्चिदानंद। ओके, तो अभी देखो, आपको भी अब ट्रांसफर करना पड़ेगा। है ममता? हाँ। ममता जी, आप अनिल भाई को और गौतम भाई को बातें करो कि अभी एक्सचेंज करना पड़ेगा। एनीवे, हाँ। ओके। तो क्या महेश दादा, बातें करो इन लोग मोनिका मम्मी देती है और दही नहीं होता है तो चिट करती है। हाँ, ये तो दादा के ज्ञान में तो कभी नेगेटिव देखना नहीं है। दादा भगवान ने तो बताया कि खाने के टाइम पे कोई भी भूल मम्मी की निकालने की नहीं है। तो अपने रिसाना का नहीं है, टूटने का नहीं है का, वो तो प्रिंसिपल बात है। ज्ञान दादा की बात में कोई भी संजोगों में हम एडजस्टमेंट लेना है, कभी रूठना नहीं है। तो ऐसे ही भूल हो गई, आपने तो माफी मांग ली, बहुत बड़ी बात है। आपने खुद की भूल दिखाई दी कि आधा ही खाना खाया और आपने सॉरी बोला मम्मी को। मगर बार बार सॉरी बोल के इतना नक्की रखना कि कभी भी सॉरी नहीं बोलना पड़े, ऐसा अपना अंदर से निश्चय पक्का रखना। खाने के बाबत में तो कभी सॉरी नहीं बोलना पड़े, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। अपनी गलती खाने की बाबत में तो नहीं होनी चाहिए। एडजस्टमेंट लो, दूध पी लो, फ्रूट खा लो, जो भी है, जूस है, सब्जी। अगर दही नहीं है तो दही नहीं है, आपने बोला कि सब्जी बनाई पर दही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब्जी के साथ दही खाना है आपको।
तो टेस्ट डेवलप हुआ है इसलिए आपने दही, मगर दही नहीं है तो छाछ ले लेने का, जो भी है घर में। तो इसलिए अपना मन बिगाड़ना नहीं, रूठना नहीं है, चिड़चिड़ियापन नहीं होना चाहिए, खाने की बाबत में एटलीस्ट तो नहीं होना चाहिए, और भी चीज में नहीं होना चाहिए। मगर ये अन्न देव का अपने अपमान हुआ, यानी कि खाने पकाने वाले का अपमान हुआ। और अनाज हमें मिलता है अपने हिसाब से मिलता है, यानी कि अपना कर्म का हिसाब से। लोगों को खाना नहीं मिलता है। अपने रोड पे देखो ने, इतने लोग गरीब है, सोने का शेल्टरिंग नहीं मिलता है, रहने का शेल्टरिंग नहीं मिलता है, खाने का वो खड़े खड़े भीख मांगते लोग, 2 पैसा दो, 5 पैसा दो, 10 रुपया लो, 5 रुपया दो। तो लोगों को खाने की इतनी भीख मांगना पड़ता है और अपने खाने में रूठ जाते। तो कितनी गरीबी है देश में, देखो। वो कर्म का हिसाब है, मगर हम ऐसे रूठेंगे तो हम खाने के लिए हम अपने व्यवहार में अंतराय खुद डालते, इसका तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं, रूठ जाते। वो चीज अपने फिर से इकट्ठे नहीं होती है। कोई भी बाबत में रिसाना नहीं है, खाने की बात तो बहुत इम्पोर्टेंट दादा भगवान ने बताया था। तो अपना खुद अपने अंतराय डालते, रुकावट अपने खुद डालते। इसलिए बड़ा बहुत ब्रॉड माइंड रखना कि अपने ऐसे माँ बाप मिले, ऐसे भाई बहन मिले, ऐसा खाना मिला है। लोगों को तो माँ बाप भी नहीं होते, बचपन में एक्सपायर होते, रोड पे सोते हैं, खाने की बात किधर, कैसे खाते, अपने विचार नहीं आएगा कि लोगों की परिस्थिति ऐसी है, हम तो लोग कितने सुखी है, बात बात में रूठ जाते। दादा भगवान का तो ज्ञान कैसा है, कोई भी संजोगों में रूठना नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं होना है, एक्साइट नहीं होना है, रूठना नहीं है, मन बिगाड़ना नहीं है। ऐसा दादा भगवान ने तो ऐसी बात की है, उसको ही मोनिका, धर्म सही है। मालूम पड़ा? हाँ, करिश्मा, आर यू हैप्पी 3 days? नहीं, किसके साथ झगड़ा किया? मम्मी के साथ। कब? सैटरडे, संडे, मंडे? सैटरडे को तो दीदी को मुझे खाली रोटी दिया था और दीदी सब नहीं सुनाई देता है क्या? टीवी 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 की बात होती है? ओ सैटरडे था तो मम्मी ने कहा था कि नहीं खाना चाहिए, पर मैंने मम्मी के साथ झगड़ा खाना है खाना है। आई डोंट नो क्यों मत। ये मोनिका क्या बोला उसने? हाँ दादा, वो कह रही है कि सैटरडे और संडे को फीवर था उसको, और मम्मी ने मना किया था कि कुछ भी ठंडा नहीं खाना है। तो उसने उस समय झगड़ा किया मम्मी के साथ कि मुझे ठंडा खाना है, इसलिए। ओके महेश दादा। ओ बिफोर हाँ दैट महेश दादा, एक मिनट, आपने प्रेयर्स करते हैं खाते पहले? हाँ मोनिका? हाँ, करती हूँ। करिश्मा? नहीं। ओके महेश दादा, करिश्मा के साथ तो बात करो। ठंडा लोग गर्म खाने के लिए झगड़ा करते हैं, आप तो ठंडा नहीं खाने के लिए झगड़ा करते हैं। उल्टी बात हो गई। मम्मी तो बोलते अच्छी बात है कि भाई ऐसे तो झगड़ा करने का ही नहीं है, रूठने का ही नहीं है, मगर क्यों मम्मी ठंडा नहीं खाने के लिए, ठंडा खाते आपको ठंडा खाना है, मम्मी क्यों आपको मना करते हो वो तो सोचो। आपके फायदे के लिए मम्मी मना करते कि लॉस के लिए मना करते? मम्मी कुछ भी करते हैं आपको खाने में तो फायदे के लिए बोलेगे ये मत खाओ,
कि ठंडा मत खाओ, इतना नहीं खाना, इतना खाना। जो भी आपको मम्मी बताते हैं, निर्देश करती है, तो आपके फायदे के लिए करेगी, लॉस के लिए करेगी मम्मी। अब ठंडा खाएंगे तो तबीयत बिगड़ेगी। ठंडे में क्या क्या नहीं होता है, गर्म खाने में टेस्टी भी लगता है, पाचन भी होता है। ठंडा तो पूरा ना होता है, 2-3 घंटे के पहले के होता है, फिर कुछ भी है। आपको ठंडा खाने में मजा आएगी, और कितना नुकसान होगा वो तो मम्मी को मालूम। कौन सी चीज कब खाना है, ठंडा भी अच्छा लगेगा, मगर कब कौन सी चीज बनाई। चावल है तो ऐसे ही आप ठंडा खाओगे, 2-3 घंटे के पहले बनाया होगा, तो आपको पाचन में और उसका विटामिन और सब, 2-3 घंटे के बाद जो चावल पहले बनाया, 11 बजे बनाया, आप 3 बजे खाएंगे तो मम्मी मना करेगी, भाई ये चावल 3-4 घंटा हो गया तो नहीं खाना चाहिए, नुकसान है। ऐसे ऐसे कौन सी चीज में कब खाना, कितने घंटे के बाद नहीं खाना, वो समझ लेने का मम्मी से। आपको टेस्ट लगता होगा, मगर मम्मी जो बोलेगी कि ये नुकसान है और नहीं खाना चाहिए, तो आपको रुकना नहीं चाहिए और आग्रह भी नहीं करना चाहिए। कौन सा बराबर। था कौन सा था खाना ठंडा? जूस पीने का था। क्या था? दही चावल, दही चावल। हाँ, दही चावल तो ना, चावल तो गर्म करना मांगता है, जो महेश दादा ने बोला। और प्रेयर क्यों नहीं करते हैं वो करिश्मा? क्या बताया था केशव दादा ने? प्रेयर नहीं करते हैं तो जहर खाते हैं, प्रेयर करते हैं तो अमृत खाते हैं। ओके, मालूम पड़ गया कि दीपक दादा, यू वांट टू ऐड समथिंग? यस। ये जो परिस्थिति में से हम गुजरते हैं, उसमें से सबसे बड़ी बात, हम बार बार हमें समझ में आता है कि पापा मम्मी को दुख हो ऐसा हम करते रहते हैं। करते कि नहीं? करते कि नहीं? करते रहते हैं। हमारा काम क्या बनता है? उन्हें हमारा दुख काम क्या नहीं, बनता है? हमें क्या करना चाहिए? उन्हें दुख नहीं देना चाहिए, हाँ, उन्हें टेंशन और दुख नहीं देना चाहिए। लेकिन जब जब आप देते हैं तो क्या करते हो आप? प्रतिक्रमण करना चाहिए, हाँ। प्रतिक्रमण करना चाहिए। लेकिन आप तो करते हो ना, कि नहीं करते हो? नहीं, कि वो करना की जरूरत ही कहाँ है? आपकी गलती नहीं हुई तो मम्मी की गलती है ना। नहीं, और मामी के घर जाके जो भी देते वो क्यों खा लेते हो? करिश्मा भी खा लेती है, हाँ, खुशी भी खा लेती है। हाँ, तो मम्मी ने बोला ना कि सबको खिलाती। नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन हमें समझने का क्या है कि ये प्रतिक्रमण अगर आप चुकेंगे नहीं, तो जो जो गलती हुई है, जहाँ से हमारी कनेक्टिविटी टूटती है, तो फिर से वो जुड़ जाती है। अभी वो करेंगे, लेकिन ये वो करना भूल कैसे जाते हैं भाई, समझ में नहीं आता है। हाँ, खाने के बाद हाथ धोते हो? हाँ, धोती हूँ। क्यों? कल से नहीं धोना अभी? नहीं, हाथ गंदे होते तो धो लेते हैं, तो उसी तरह से जहाँ गलती होती है वहां ये करना है हमें। आप तो इतने टाइम हो गया, इतने अभी स्मार्ट दादा भगवान के बच्चे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि गलती नहीं करना चाहिए।
गलती नहीं करने का हमारा भाव तो होता ही है, दुख नहीं देने का भाव तो हमारा होता ही है, लेकिन प्रतिक्रमण कैसे छूट जाते हैं? करिश्मा आप भी करते हो प्रतिक्रमण कि भूल जाते हो? हाँ, भूल जाती हूँ। नहीं मुझे अभी मुझे ये समझना है, प्रतिक्रमण करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है थोड़ा कम। नहीं अच्छा लगता है। हाथ धोने का अच्छा लगता है? हाँ हाँ बोलो। कपड़ा धोने का अच्छा लगता है? नहीं हाँ, कपड़ा नहीं बिगड़ता तो है, अच्छे से बिगाड़ते हो, लेकिन कपड़े कौन धोते हैं? हमने हाँ, हमें तो आवाज नहीं आती है आप लोगों की? ना करो। क्या अंदर अंदर बात करते रहते हैं, हमें सुनाई नहीं देता है? दादा मैं अपने कपड़े धोती हूँ और हाँ, करिश्मा की मम्मी सुनाई नहीं दिया। आप मम्मी कपड़े धोती है मम्मी कपड़े धोते हैं आपके? मेरे फिर नहीं बर्तन कौन सफाई, बर्तन कौन साफ करते हैं? मैं हाँ, मैं करती हूँ अरे सुनाई दे रहा है ये करिश्मा क्यों इसे पीछे से बोलती है, क्या बोलती है? हाँ, ये आप लोग को आवाज क्यों नहीं आता है? दादा अभी सुनाई दे रहा है हाँ, करिश्मा क्या कहती है, आप झूठ बोलते हो ऐसा बोलते हैं? नहीं दादा हाँ, दादा मैं और खुशी बर्तन कि करिश्मा क्या करती है पीछे, वो क्या बोलती रहती है? करिश्मा कहती है कि मैं भी धोती हूँ हाँ, जरा जोर से बोलो ना, आपको रड्डी दादा आवाज आता है आपको? थोड़ा थोड़ा आता है, कभी कभी आता है, अभी अभी आता है, यस। हाँ करिश्मा कहती है कि वो भी धोती है बर्तन वो धोती है कि नहीं धोती है? सीख रही है बस अभी इसलिए कभी कभी धोती है? हाँ हाँ, हाँ कभी कभी कि हर रोज धोती है? कभी कभी अरे आप बोलते नहीं है, थक जाता हूँ कभी मैं फिर। कभी धोती है हाँ, कभी 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 धोती कभी है। धोती है हाँ, ठीक है, वो छोटी है तो उसको पास करते हैं, लेकिन आप लोग तो धोते हैं, लेकिन कपड़े मम्मी हाँ धोते हैं ना? कपड़े मैं धोती हूँ आधी और आधा वॉशिंग मशीन करता है आधे आप करते हैं, आधे वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन क्यों करते फिर, वॉशिंग मशीन में क्या करते फिर? वॉशिंग मशीन एक्स्ट्रा हाँ, क्लोथ्स के लिए मम्मी के कपड़े पापा के करिश्मा के और सभी के ठीक है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो सबके घर की सिस्टम अलग होती है। ओके हाँ फाइन, लेकिन हम क्या कहते हैं, मूल बात पर आते हैं, प्रतिक्रमण करिए। हाँ गलतियां आप नहीं करते, लेकिन प्रतिक्रमण आपको करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हाँ ओके। तोरल, तोरल समझ गई? हाँ तोरल 3 दिन ओके हैप्पी गुड। थे आप? हाँ आज हैप्पी था। अनहैप्पी के हैप्पी? हैप्पी। क्यों? आज मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। ओ वेरी गुड। अच्छा मार्क्स यानी किसमें, सब ओ एग्जाम पीरियड सोशल साइंस। किसमें? सोशल साइंस में एसएस में। ओ टेस्ट था। हाँ टेस्ट था, हाँ टेस्ट। हाँ अच्छा, तो आपने खाना सब खाया 3 दिन? हाँ। ओ वेरी गुड, ओके, गुड, वेरी गुड, ओके। जय सच्चिदानंद। अच्छा।
Okay, Monica, you there? हाँ दादा, खुशी चेन्नई एक और एक Okay. खुशी चेन्नई एक है ना। खाई खुशी ली क्या? क्या? खुशी है, जॉइन है, वो ऊपर गाने वाली है। ओके ओके, किधर से वो ज्वाइन हो गई तो हाँ सेपरेट वो होती? कभी ज्वाइन होगी, आज सेपरेट हुई है आज। ओके ओके ओके। खुशी अनम्यूट करो। हाँ जय सच्चिदानंद। और आपको टीवी हो सकता है ऑन वीडियो? ओके, वेरी गुड। ओह, क्या बात है, आज तो आप हैप्पी बर्थडे आपका। नहीं है तो वीडियो बंद करो। ओके ओके, let me have to share. Okay, खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। निवेडो लागियो दादा जगत मा पूछ तू नहीं हमारा पाप एक बाड़ी मिनट, कौन सा पद है ये? नहीं है? निवेडो लागियो दादा। हाँ? निवेडो लागियो दादा। Oh, Deepakan जी, can you put it up? मोनिका ये हमको सेंड किया था। दीपकान जी, एक मिनट, कौन सा सीडी है मालूम है? I am getting it. I am getting it. Hold on. ओके, वेरी गुड। Okay, go ahead. ओके खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। निवेडो लागियो दादा जगत मा पूछ तू नहीं मारा पाप बारीयो दखल मा पूछ तू नहीं दखाया माँ की अने ते लाय નથી દિલ થારું આજો ચરિયો બરબાદી ઘરમાં તું નથી ગઈડું માં તું નથી હિસાબે ઇન્દ્રિયના હાથે ઈચ્છતો તમે આત્મને અભિશું અને આત્મને કયા ભી दुनिया
ना कोई पाप मुत मंगल जय हमारा खलमा सुमति जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये पद आपने गाया, अच्छा निकाला था, निवोडो लावी, तो उसका मीनिंग मालूम है? हाँ नहीं नहीं, ओके। तो महेशान जी, इन लोग तो हाँ, आ, ऐसे बस ट्यून पे गाते हैं। पसंद करते हैं, थोड़ा हम्म, वो तो पद अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब दादा कबीरदास ने तो ऐसा ही बोला था, दादा भी बोलते थे, आप गाते रहो, धीरे धीरे आपका फीलिंग वो आएगा। जैसे सत्संग में आते जाते रहेंगे तो मीनिंग मालूम पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर गाने से आपका जो टून भी बैठ गया, अच्छी तरह से गाते हैं, तो एक दिन आपको समझ में आएगा। तो सत्संग में समझ लेना कि अभी दादा भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, हमारा निवेड़ा लावी दो। यानी कि जो भी हमारे पजल है अंदर, जो हमारी भूलों होती है, हमारा जो अंदर प्रॉब्लम है, सब जो भी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ऐसे अभी ये जगत में कुछ हमारा जचता नहीं है, यानी कि रुचता नहीं है। यानी कि जगत ये है अब मेरे ये, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। रुच तो इतने कमु, वो अंदर लाइकिंग होते हैं, अंदर जो भी ठंडक होती है। यानी कि ये जगत ऐसा है, ऊपर नीचे हमें करता है, डिप्रेस करता है, एलिवेट करता है, कुछ जचता नहीं है। यानी कि दादा भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सब पाप को जला दो, और हमें ऐसी शांति, सुख शांति हमें प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति करवा दो, और ये सभी पजल को सॉल्यूशन लाके हमें हमारा पाप जला के हमें ऐसी शांति, परमानेंट शांति, परमानेंट सुख की प्राप्ति हमें प्राप्त करनी है। ये दखल में सूझतू नहीं कहीं। हमारी जो डखो दखल होती है, जो भी प्रॉब्लम में जो हम इंटरफियर हम होते, दखल यानी कि इंटरफियर होना, तो व्यवहार में इंटरफियर होते, अपनी पढ़ाई में थोड़ा दखल दखल इंटरफियर होती है, जचता नहीं है, कुछ पढ़ाई भी नहीं अच्छी लगती, दादा का ज्ञान भी अंदर रुचता नहीं है, ये समझ में नहीं आता है, तभी हमारा निवड़ा लावी दो। तो यानी कि सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला दो, हम दादा से प्रार्थना करते हैं। तो डखा अज्ञान में कीधा અને તેની બળે લાવ્યું। तो अज्ञान दशा में ये सब डखो दखल बोलते हम, तो हम अण समझण में जो भी हम जो माना था, ये करो, ये नहीं करो, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, बुरा है, ऐसा डखा यानी कि पजल प्रॉब्लम क्रिएट किया था अज्ञान दशा में। यानी कि हमारी अण समझन में जो भी हमें ये अच्छा बुरा, जैसे बताया ने, खाने में ये नहीं, ये चाहिए, नहीं चाहिए, ये सब्जी नहीं पसंद, ये सब डखो डखल होती है। हम शांति से अपने जो भी हिसाब आते खाने का, हम एक्सेप्ट करके खा नहीं लेते। तो सभी व्यवहार में, पढ़ाई में, एक्सरसाइज में, मम्मी पापा के साथ डीलिंग करने में कुछ एक्साइटमेंट होता है, गलती होती है, किसी की भूल दिखते है, तो सभी डखो दखल हमेरी वो निकाल दो। નથી દિલે કોઈનું ઠાર્યું, भूले आयुष्य मंगायु। किसी को सुख नहीं दिया है, सबको दुख ही दिया है। तो हमारा आयुष्य ऐसे सभी भूल करके हम बैठे हैं, तो हमारा आयुष्य ऐसे बिगड़ गया है। तो ऐसे शक्करिया वो अग्नि में वो जलता है, वो पकता है, ऐसे हमारा जीवन ऐसे शक्करिया अग्नि में जलता है, तो हमारा जीवन ऐसा हो गया है। तो हमारा निवेड़ो लावी दो दादा,
कभी कुछ जचता नहीं है, हमें कुछ मजा नहीं आती है, तो कुछ आप ऐसा करो कि ऐसा ज्ञान, ऐसी सच्ची समझ हमें प्राप्ति दो। दादा के ज्ञान से दादा को प्रार्थना हम करते हैं, ऐसा कुछ करो, ये समझाते हैं। इतना ही गाया है ना। हम्म, और हाँ, या बोलो और कुछ। करो एक, और बाद में मोनिका आप करो। जी, वन प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम आपको क्या है? तो महेश दादा की बात करो। खुशी, अनम्यूट करो। हाँ, मेरी मेजर प्रॉब्लम मुझे लेसन बहुत है, काम उसमें नहीं करती। क्या प्रॉब्लम? लेजीनेस, आलस बहुत है। लेजीनेस, हाँ, आलस आलस। हाँ तो क्या, किसमें आलस होती है? पढ़ाई में? हाँ, पढ़ाई में, और मम्मी जब काम कहती है तब। हाँ, मम्मी काम बताती है तब। हाँ, तो नक्की करना, दादा के पास शक्ति मांगना कि मेरी लेजीनेस है पढ़ाई में। और लेजीनेस से कितना, किसी को सुबह उठने में लेजीनेस होती है, किसी को पढ़ाई में लेजीनेस होती है, किसी को काम, मम्मी काम बताती है, किसी को हेल्प करने में लेजीनेस होती है। तो अपने सोचना है कि अगर लेजीनेस निकालेंगे तो पढ़ाई मेरी अच्छी होगी। अच्छा, लेजीनेस से मेरी पढ़ाई बिगड़ती है, मेरा मार्क्स इतना अच्छा नहीं आता है, तो पढ़ाई में तो लेजीनेस होना ही नहीं चाहिए। और मम्मी पापा के साथ लेजीनेस होती है तो मम्मी पापा का राजीपा भी नहीं मिल सकता है, उनकी खुशी जो प्राप्त होनी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होना है। तो लेजीनेस से क्या है, हम मम्मी के सामने, यानी कि मम्मी जो काम बताती है उसमें लेजीनेस, तो अपने अंदर चिड़चिड़ियापन स्वभाव ऐसा हो जाता है। तो कितना नुकसान है। और लेजीनेस निकालने से कितना फायदा है, लेजीनेस रखने से, आलस प्रमाद रखने से कितना नुकसान है, वो फायदा और नुकसान देख लोगे ना आप, तो समझ जाएगा अभी अवॉइड करना है नुकसान। और फायदा एक बार अवॉइड करेंगे हम लेजीनेस को, तो फायदा फायदा ही है। और लेजीनेस रखेंगे तो कितना लॉस होगा, तो किसी को लॉस पसंद होगा? नहीं होगा, फायदा पसंद होगा। तो हमारा ही लेजीनेस एक वीकनेस है, वो समझ में आएगी कि दिस इज माय बिगेस्ट मिस्टेक। उठने में, खाने में, सोने में, पढ़ाई में, मम्मी पापा के साथ सेवा करने में, विधि करने में, एक्सरसाइज 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 कसरत करते ना, एक्सरसाइज, उसमें लेजीनेस, यानी कि जो भी लेजीनेस हम रखेंगे ना, जितनी, इतना हमें इतना लॉस है। वो लॉस गिनेगे ना तो हमें मालूम पड़ेगा कि दिस इज टू मच लॉस। अभी लॉस, मगर लेजीनेस निकाल लेना है। हे दादा भगवान, मेरी लेजीनेस निकले, ऐसी मुझे शक्ति दो। उसके लिए प्रतिक्रमण भी करते हैं, माफी भी मांगते हैं। इतना एफर्ट करेगा, धीरे धीरे आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज माय बिगेस्ट मिस्टेक, लेजीनेस इज बिगेस्ट मिस्टेक। ऐसी समझ में आया, इस उतना मुझे इतना लॉस है, मेरी बिगेस्ट मिस्टेक है। और हे दादा भगवान, मुझे बड़ी मिस्टेक निकालने की शक्ति दो। और मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरी लेजीनेस निकालना है। ये प्रार्थना करने की, प्रतिक्रमण करने का, दादा के पास शक्ति मांगने का। पहले ये वीकनेस है कि स्ट्रांगनेस है, समझ लेना। तो दिस इज बिगेस्ट वीकनेस। मिस्टेक तो है, तो वीकनेस, नबड़ई, उस मालूम पड़ेगा। इज मारी बिगेस्ट मिस्टेक, लेजीनेस इज बिगेस्ट मिस्टेक इन एवरी फील्ड। तो आपको आपकी मिस्टेक मालूम पड़ेगा तो फिर उसका उपाय करेंगे, बराबर? ठीक है। खुशी, ओके। हाँ, मोनिका, जय सच्चिदानंद। सुनाई जय, दे रहा है? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ।
हाँ, मेरी मेजर प्रॉब्लम ये है कि खाने में बहुत होती है। मैं अबाउ क्या करना नहीं चाहती खाने में। क्या खाने में, खाने में। खाने में क्या? हाँ हाँ, खाने में क्या हाँ, होता है? मैं खाने में अबाउ करना नहीं चाहती बट वो हो जाता है, और जो मम्मी हाँ खाना हाँ बनाती है उनको भी दुख होता है, और मेरे को भी बहुत नुकसान होता है। हाँ, बराबर। फिर और उपाय किया? मैं जब भी खाने के लिए बैठती हूँ मैं हर रोज प्रेयर करती हूँ, फिर भी उसमें अभाव होता है। तो हाँ, तो अभाव को जानने का है कि हे दादा भगवान, प्रेयर, खाने की प्रेयर करने का, इसकी भी प्रेयर करने का, यानी कि माफी की प्रेयर करने का, ये अभाव तिरस्कार जो कलम आती है ना, 9 कलम में, चौथी कलम, हाँ। तो जो भी मेरे से अभाव तिरस्कार हो जाता है, हे दादा भगवान, मैं उसकी माफी चाहती हूँ और मुझे क्षमा करो, और फिर से ऐसे अभाव तिरस्कार न हो, ऐसी मुझे शक्ति दो। ऐसे प्रतिक्रमण, एक टाइप ऑफ प्रतिक्रमण है ये, 9 कलम है, चौथी कलम। तो जहां जहां मन बिगड़ता है, अभाव होता है, तो माफी मांगना है और दादा के पास शक्ति मांगना है, और फिर से अभाव कभी भी खाने में न हो, ऐसा पक्का निश्चय करना है। क्योंकि आपका निश्चय पक्का नहीं होता है ना, जो गलती हाँ। होती है, हाँ। गलती में हम जो पक्के हैं, बार बार होने होती है, यानी कि हम्म। वो टाइम पे, मगर फिर ये अपना निश्चय पक्का करेंगे ने, दादा के पास शक्ति मांग के, कभी फिर से खाने में मुझे कोड़ खापड़ निकालनी नहीं है, अभाव तिरस्कार करना नहीं है, मुंह बिगड़ना नहीं है। कुछ भी खाने के टाइम मुझे किसी की भूल, अन्न देवता है तो उसकी भूल हमें नहीं निकालना है, खाना पकाने वाले की भूल निकालना नहीं है, खाने में जो शुद्ध आत्मा भगवान है उसको भी हमारा नमस्कार, कभी भी उसको तिरस्कार से हम देखना नहीं है। खाने, अन्न देवता से प्रार्थना भी करना है, और जो खाना पकाने वाले मम्मी से प्रार्थना करना है कि मेरे से गलती हो गई और मेरी वीकनेस है, उसको अभी निकालनी है। तो आपका पक्का हृदय पूर्वक प्रार्थना होगी ने, गलती निकालना है, दैट इज बिगेस्ट मिस्टेक, तो ये निकल सकती है। आपको मालूम है, आपको लगता है कि भाई दिस इज माय बिगेस्ट मिस्टेक, तो मुझे निकालने की है, एक का पक्का निश्चय करेंगे ये वीकनेस को निकालने के लिए। तो आज नहीं तो 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना लगेगा, पर निकल जाएगी। हृदय पूर्वक आप नक्की करेंगे तो, निश्चय करेंगे तो, प्रतिक्रमण करेंगे तो, बराबर। हाँ। प्रयत्न, एफर्ट करना, करिश्मा है, पुरुषार्थ हाँ। तो। करिश्मा है उधर? नहीं। नहीं है, ओके। ओके, तो वेरी गुड। ओके, तो ये इस पे अभी तो छुट्टी है, महेश दादा ने जो बोला उसके जरा मंथन करना। ओके हाँ। जी, जय सच्चिदानंद। ओके, पूजा, आपने यह पद सुना, तो आपका क्या निवड निकालने का है? महेश दादा के साथ बात करो। अपना मेन वीकनेस क्या है पूजा? हाँ। आपका मेन वीकनेस क्या है? किसका निवाडो निकाल, सोल्यूशन किसका लाने का है आपको? निरंतर ज्ञान में रह सके। क्या क्या ज्ञान में है? ज्ञान में रह सके वो निरंतर। ज्ञान में रह नहीं सकती, उसका सॉल्यूशन चाहिए। हाँ। कौन सा ज्ञान में? 5 आज्ञा वो में? जागृत हो। 5 आज्ञा की बात करती है, करते आप? हाँ।
पांच आज्ञा में रहने का नहीं रह पाते आप, ऐसे है ना? ऐसी हाँ बात है कुछ? हाँ, तो पांच आज्ञा में तो क्या है, हमें हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए पहला, कि कोई भी संजोग आवे तो मुझे व्यवस्थित शक्ति करता है, ऐसा अंदर से रहना चाहिए कि व्यवस्थित शक्ति का ज्ञान मुझे लाना है। कोई भी पैकिंग है तो शुद्धात्मा देखना है, पैकिंग और शुद्धात्मा, पैकिंग और शुद्धात्मा, ऐसे अंदर से नक्की और पुरुषार्थ करना है, निश्चय करना है। दादा भगवान, आपकी पांच आज्ञा बहुत सरल है, मगर मेरी पांच आज्ञा के लिए पालन करने के लिए मुझे आप जागृति दो, शक्ति दो, कृपा करो मेरे लिए, ऐसे बार बार मांगना है। और हमारा दृढ़ निश्चय करना है हमें कि हमें ये पांच आज्ञा के की पुरुषार्थ की जागृति हमें जो कम पड़ती है, तो हमारा अंदर निश्चय भी कम पड़ता है। बार बार नक्की करना उसको निश्चय बोलते हैं। तो उसका फायदा क्या है पांच आज्ञा पालने का? क्योंकि वो अंदर का सुख, शुद्धात्मा का सुख हमें प्राप्ति करने के लिए हमें ये पांच आज्ञा दादा भगवान ने बताया कि आपका अंदर का शुद्धात्मा का सुख बढ़ेगा। तो जहाँ जहाँ पांच आज्ञा पालन नहीं होती है, हम लेजीनेस करते चुक जाते, तो हम प्रतिक्रमण भी एक बताया कि हे दादा भगवान, मेरी बहुत गलती होती है आज्ञा की जागृति के लिए। तो बार बार जब नहीं पालन होता है, बार बार उसकी क्षमा चाहना है, क्षमा मांगना है, उसको प्रतिक्रमण बोलते हैं। तो जैसे कोई गलती होती है, हम प्रतिक्रमण करते हैं, ये पांच आज्ञा का पालन नहीं होता है, ये भी गलती है, हम उसको गलती नहीं मानते, तो हकीकत में वो भी गलती है, निश्चय की गलती बोलते हैं, वो व्यवहार की गलती बोलती है, निश्चय की गलती। तो आपको पांच आज्ञा का पालन करने में रुकावट पहले ढूंढना है। इस कोई भी रुकावट करने वाला कौन है? आपको पांच आज्ञा पालन करने की है, मगर कोई ऑब्स्टेकल अंदर कोई है जो आपको मना करते हैं पांच आज्ञा का पालन करने में, वो उसको इन्वेस्टिगेशन कर ले। कुछ भी गलती होती है ना, तो बिना कुछ कारण नहीं होती, कहाँ अंदर हाँ रुकावट आती है पांच आज्ञा में, तो आपके अंतस्करण में ढूंढ लेने का कि भाई आपका लेजीनेस है, आपका अनिश्चय है, कि आपको पांच आज्ञा पालन करने में इंटरेस्ट इंटरेस्ट कम है, दूसरी बाबत में उसका इंटरेस्ट ज्यादा हो। पांच आज्ञा पालन में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए वो इंटरेस्ट कम होगा और ये इंटरेस्ट बढ़ेगा। अभी क्या है, और देख ले, जांच कर लेने की कि हमें कहाँ कहाँ हमारे अंदर इंटरेस्ट है, मान में, वही सुख सगुण में, पैसे में, प्रतिष्ठा में, यानी कि जो जहाँ जहाँ हमें सुख माना है, पांच आज्ञा में तो सुख माना ही नहीं है, तो अभी मालूम पड़ा पांच आज्ञा। तो जहाँ जहाँ सुख माना है वहां मेरी चित्त वृत्ति ज्यादा जाएगी। तो हमें सुख माना है मान, प्रतिष्ठा, मोह में, लोभ में, सुख सगुण में, तो देख लेने का अपनी प्रकृति, अपनी चित्त वृत्ति कहाँ जाती है। जहाँ सुख माना है वहां जाएगी। जैसे हम बाहर निकले बाजार में, तो जहाँ कादव कीचड़ है, दुर्गंध आती है, गटर लाइन है, वहां अपने को जचेगा नहीं, वहां सुख नहीं माना, तो अपना चित्त गया नहीं गया, हम वो उकरड़ा है यानी कि गंदगी है, वो देखा कि नहीं देखा, आगे निकल जाते, दुर्गंध आती है वहां, दृश्य को अवॉइड करते, क्योंकि सुख नहीं माना है, दुख माना है। जहाँ सुख माना है वहां अपना चीज बार बार जाएगी। जैसे आप शॉपिंग करने गए, तो आपका ड्रेस है, शूज है, सैंडल है, चप्पल है, कि
सोने की दुकान में गए, दागीना के कुछ चीज पसंद, कुछ भी पसंद वाली चीज खरीदने में गए, शॉपिंग करने में, तो आपको बहुत खुशी लगेगी। कितनी भी गर्मी होगी, गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी पसंद की चीज है ना, वहाँ आपको सुख लगता है, वहाँ आपका चित्त वृत्ति अंदर अंतस्कर अंतस्करण चितक जाता है, वहाँ अपने आप वो लेके आया हूँ, उसमें मान्यता सुख की। ये सुख की मान्यता 5 आज्ञा में लेके नहीं आए। तो दादा भगवान बोलते हैं, जब इस इसमें प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस तो हम लेके आए कितने अवतारों से, सुख माना है, जो जो चीज बताई वो मार्केट मटेरियल, मोह वाली चीज, रात दिन आपको कपड़े में, दागीना में, सब सुख सगवड़ में, फर्नीचर में, जो भी है घर में, जो भी सुविधा, खाने में, तो ऐसे सुख माना है, इसलिए उसको चित वृत्ति उधर चिटकती है। और 5 आज्ञा की इतनी सरल है, मगर सुख नहीं माना है। तो हे दादा भगवान, मुझे ये 5 आज्ञा की कीमत, यानी कि उसका महत्व की समझ आप मुझे ऐसी कृपा करो, और जितनी जितनी हम पालन करेंगे तो सुख आएगा, क्योंकि उसमें सुख नहीं आता है क्योंकि पालन नहीं करते। नहीं, जहाँ सुख आता है वहां हम जाते, तो उसकी महत्वता आपने समझ में नहीं आया। तो धीरे धीरे दादा भगवान के पास शक्ति मांगेंगे, और 5 आज्ञा में क्या सुख है, इम्पोर्टेंस क्या है, और उसका पक्का निश्चय करेंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, तो समझ में आएगा कि शुद्धात्मा देखने से, व्यवस्थित शक्ति करता के पायल कर देखने से हमें इतना सुख आएगा आत्मा का। तो ऐसे बार बार दादा के पास प्रतिक्रमण करने का, शक्ति मांगने का, और प्रॉफिट और लॉस देखने का, ये कितना प्रॉफिट है और नहीं पालन करने में कितना लॉस है, ऐसे उसको फाइल नंबर 1 को समझाने का। ये दादा का ज्ञान किसी को सहायक संकित, यानी कि संकित की बात एक कलयुग में होती नहीं है, और दिव्य दृष्टि प्राप्त होता ही नहीं। दिव्य दृष्टि अपने को प्राप्त हुआ, दिव्य दृष्टि यानी कि शुद्धात्मा देखने की, ये दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ, कभी नहीं प्राप्त होता है, और हम दिव्य चक्षु का उपयोग नहीं करते क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस हमें समझ में नहीं आता। हे दादा भगवान, ये दिव्य चक्षु की सही समझ, कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध में दिव्य चक्षु थोड़े टाइम के लिए दिए थे, और अपने को कायम के लिए दिव्य चक्षु प्राप्त किया। सभी में भगवान देखना, वो दृष्टि हमें प्राप्त हुई है, तो सभी में ऐसे प्राप्त होता नहीं है भगवान देखने की लिए। और अपने मुफ्त में, यानी कि कुछ भी कसरत किया नहीं, पुरुषार्थ नहीं किया, और मुफ्त में बोलते हम, तो ये दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ है। उसकी कीमत कितनी है वो समझाने की, अपने को लीला बहन को समझाने की, ये कितनी पूजा है ना, तू पूजा पूजा को पूजा समझाने की, कि भाई ये दिव्य चक्षु कभी प्राप्त नहीं होता है, और दादा की कृपा से प्राप्त हुआ। तो हे दादा भगवान, मुझे दिव्य चक्षु की समझदारी, और मैं समझ नहीं पाती, आप कृपा करो। बराबर वो पूजा सत्संग क्या? वो सत्संग में रहते तो जागृति रहती है, और थोड़े दिन भी सत्संग में नहीं रहते तो फिर ऐसा नहीं है। सत्संग में तो रहना है, और साथ साथ में अपना भी सामायिक प्रतिक्रमण करके शक्ति मांगना, वही सामायिक है, और एनालिसिस करना वो भी सामायिक है। ये दृष्टि प्राप्त हुई कभी नहीं मिलेगी, यानी सत्संग के परिचय में रहना ही है। सत्संग नहीं मिले तो अपने अक्रम विज्ञान है, आप्तवाणी है, कीर्तन भक्ति है, दादा का जो भी बताए गए ये सत्य साधन है, वो सत्संग है मेरे लिए। किताब भी सत्संग है, दादा की बानी सुनते वो भी सत्संग है। सत्संग नहीं मिला तो हम क्रिएट करने का,
कि भी दादा का क्या मोबाइल में यूट्यूब में क्या है, आप तो पुत्रों का सत्संग है, दादा की वाणी भी आती है, डाउनलोड करेंगे तो सब कुछ है। इतनी सरलता से आप लिखेंगे तो आएगा, तो नहीं तो किसी को बोलना तो आपको मोबाइल में फीड करके भी देगा। सत्संग ढूंढ लेने का, घर बैठ के सत्संग नहीं आएगा। दादा को याद किया, उनकी भक्ति की तो सत्संग है, बराबर। प्रतिगमन किया वो सत्संग, सामायिक किया वो सत्संग। दादा भगवान का असीम जी का घर पे बोल बैठ के भी 10 मिनट बोला वो सत्संग, बराबर। और कुछ हाँ, और वो मेरे को ऐसा लगे कि लोग की गांठ बड़ी है, उसमें हाँ से तो कैसे बोलते हैं ना, निकले बाहर? रिक्शा में बैठ के वो परचूरण बोलते हैं ना, 5 रुपया 10 रुपया सिक्का आता है ना, 8 आने का, रुपये हाँ, का, 2 रुपये का, 10 रुपये का भी निकला है, 5 रुपये का, सभी 200-300 रुपये का इकट्ठा सिक्का कर लेने का, और रिक्शा में बैठ के आप डालते रहना बाहर 200-300 रुपया। तो माय शानंद जी, वो तो पूजा तो अभी काम नहीं करती है, तो दूसरा अरे तरीका उससे बताओ। मैं 2-3 हजार नहीं बोला, ये तो दो भाई तीन नहीं, हजार नहीं बोला। भाई के पास लेना पड़ेगा उसे दूसरा। हाँ तो ज्यादा नहीं लेने का, 50-100 रुपये तो ले सकते हैं ना। अब तो एक दादा भगवान ने उपाय बताया था, बड़ी होके करना, कमाएगी तब करना। मगर क्या है, ये लोभ की गांठ कब छूटेगी? कुछ छूटेगा हाथ से, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपये का सिक्का, 100 रुपया भी आप रिक्शा में बैठ के भाई के पास लेके अब डालते रहे। ऐसा प्रयोग बताया था। ऐसा तो कोई भी लेगा काम आएगा, सिक्का तो बिगड़ेगा नहीं, नोट गीली हो जाएगी कि वो होगी, वो कॉइन होगा तो किसी गरीब लोग ले लेंगे। और मेरे आपके जैसे 2 रुपया पड़ा है तो भी नहीं लगे, किसी का गिर गया। यानी कि ऐसा रिक्शा में बैठ के ऐसा प्रयोग बताया था। नहीं ये जचेगा, हे दादा भगवान, मेरी लोभ की गांठ किस में लोभ आता है? आप लोभ किस में है आपका? कुछ भी है, शॉपिंग करने जाते, कुछ भी शॉपिंग लोभ करने जाते तो वो रेट करवाते। रेट तो व्यवहार है ने। लोभ किसको बोलते हैं? कि हम सब्जी लेने जावे तो सब्जी सस्ते में ढूंढते हैं, यानी कि लोग पैसा ज्यादा नहीं देना है हमें और सब्जी वासी मिलती है 2-3 दिन पुरानी। लोग के हिसाब से हम फ्रेश सब्जी नहीं खरीदते, पुरानी सब्जी कम पैसे में खरीद के हम खाना खाते, उसको लोग बोलते हैं, कंजूसाई बोलते हैं, लोग बोलते हैं। तो दादा बोलते कर कसर करो, लोभ मत करो, कंजूसाई मत करो। कर कसर यानी कि जितना चाहिए इतना ही वापरो। जैसे लोभ लोभ वो कीड़ी क्या करती है, एक दाना लेके रखती है, फिर दूसरा लेती है, खाती नहीं है, इकट्ठा करती है। परिग्रह, लोभ का परिग्रह बढ़ाती है। फिर एक दिन उंदर आता है और उसका जो भी इकट्ठा किया 10 दिन का, उंदर खा जाता है। तो सुबह उठ के कीड़ी, चींटी बोलते, कीड़ी को क्या बोलते हैं? चींटी। तो सुबह से, कीड़ी बोल। हाँ कीड़ी बोलते, चींटी बोलते कीड़ी। सुबह से 4 बजे से भाई उसको क्या इतना उजागर करके 3-4 बजे से एक कुछ भी चाय का पिया रात को और शक्कर रह गई, एक एक दाना लेके उसके जो भी खजाने में इकट्ठा करती है, करते खाती नहीं है, एक चटका भर के उसको छोड़ नहीं देती, उठा के उनके घर में जो भी घर बनाया उसका रखने का स्टोर में इकट्ठा करते। इस तरह से हम भी ये क्या करते, लोग के हिसाब से सब इकट्ठा करते वापरते नहीं है, फिर खराब हो जाती है चीज। नहीं वापरे तो हम दूसरे को दे भी नहीं सकते, क्योंकि लोभ ऐसा है ना। इसलिए पैसे का
एक प्रयोग बताया था। दूसरे को हम देते तो अब मन खुला हो जाता है, लोभ फिर निकल जाता है। नहीं तो कोई ना कोई आपका वापरेंगे नहीं तो खराब होगा, बिगड़ जाएगा, यानी कि किसी को काम नहीं लगेगा। आप आपके पास जो चीज है आप दूसरे को देंगे, जो जो जिसको उपयोग है, तो आपका लोभ कम होगा। लोभी में आदमी क्या होता है, इकट्ठा करना है बस। हाँ। वो आप खुद नहीं वापरते, दूसरे को वापरने नहीं देते। तो दिखना चाहिए ये ये मेरा इकट्ठा करने का लोभ है। हे दादा भगवान, मुझे लोभ से छुड़वाओ। बराबर। ठीक है और पूजा। हाँ। और मान की भी हाँ, मान ऐसे ही है। गांठ बढ़ी है इसको तो कैसे हाँ, निकले। तो जहाँ दादा बताया ना, जहाँ अपमान का डर है वहाँ मान का भिखारी पड़ा है। यानी कि कहाँ मान मिलते हैं वहां हम जाते, जहाँ मान नहीं मिलता है वहां हम खड़े भी नहीं रहते। तो ऐसे ही प्रार्थना करने के, हे दादा भगवान, मेरा ये लोभ है, मान है, क्रोध है, लोभ है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष। तो नया नहीं बनता है, मगर पुराना जो दिखता है, दिखना चाहिए। ये मेरा मान की गांठ है, लोभ की गांठ है, परिग्रह की गांठ है, गुस्से की गांठ है। गांठ यानी कि जो बोलते हैं ना, तो वो मुझे निकालने की है। दिखना चाहिए कहाँ मुझे मान अपमान मिला, वो वहाँ अपमान का जहाँ डर है, वो मान का भिखारी पड़ा वहाँ खड़ा रहते। जहाँ अपमान का डर लगता है, दादा भगवान ने तो उसका फ्रेंड फ्रेंड ने बताया कि मेरी अपमान की जगह मैं बताऊं, तो दादा भगवान तो इतने खुश हो गए कि ऐसा फ्रेंड तो कभी नहीं मिला, वो उसके अपमान की जगह बताते। तो ये दादा भगवान से प्रार्थना करना कि अपमान मेरा जहाँ आता है वो मेरा अच्छी बात है, तो मेरा मान निकलेगा। हम अपमान को रोकते हैं और मान को हम स्वीकार करते हैं। अपमान को रोकना नहीं है, जहाँ अपमान मिलता है वहाँ ज्यादा जाने का, वहाँ जहाँ मान मिलता है वहाँ रुकने का है। या अपमान की भिखारीपना निकल जाएगा तो अपमान का डर नहीं लगेगा। पहले मान के भिखारीपना, तो जैसे अपमान का डर निकल जाएगा तो मान के भिखारीपना निकल जाएगा। समझ में आए पूजा? हाँ। तो दादा से हाँ। प्रार्थना करना, आपको दिखता है मान, वो बहुत बड़ी बात है। और निकालने का है, और ये वीकनेस है, इतना समझ में आएगा तो अपने आप मालूम पड़ेगा दिस इज माई वीकनेस, भूल है, मुझे मान चाहिए। अंदर अंदर भिखारी पड़ा है, यानी कि, और अपमान का मुझे डर लगता है, मान का मुझे याचक पड़ा है, यानी कि मुझे चाहिए। वो ऐसी भिखारी पड़ा है, तो ये मेरी भी वीकनेस है। हे दादा भगवान, ये मेरी लोभ है, मान है, ये वीकनेस है, किसी भी तरह से मुझे उसमें छुड़वाओ। प्रार्थना करने की। बराबर। जो भी वीकनेस के लिए शक्ति मांगनी चाहिए ना। शक्ति मांगना, प्रार्थना करना, प्रतिक्रमण करना, और उसका समझ लेना कि दिस इज माई बिगेस्ट मिस्टेक, लॉस। प्रॉफिट तो है नहीं, वीकनेस, मेरी वीकनेस निकालने की है, ऐसा मालूम पड़ना चाहिए। दिस इज माई वीकनेस, और वो वीकनेस मुझे खा जाती है, यानी कि नुकसान करने वाली। समझ में आएगी तो फायदा नहीं है, वीकनेस लॉस करने वाला है। एवरी वीकनेस क्या करती है, हमारा सुख छीन लेती है, आत्मा का सुख आने नहीं देते वीकनेस। तो लॉस है ना, प्रॉफिट लॉस समझ जाएंगे ना, हाँ। दिस इज बिगेस्ट लॉस। तो आपको वीकनेस से दूर रखेंगे। वीकनेस खड़ी होगी तो दादा से प्रार्थना करने की, मुझे वीकनेस में से निकालना तो दादा, मुझे अभी पसंद नहीं है। और एनालिसिस करना, कितना कितना लॉस है वीकनेस से, ये लॉस है, लॉस है, लॉस, लॉस, समरी करते रहना।
बराबर। हाँ और ठीक है पूजा। हाँ हाँ ओके वेरी गुड, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। आई होप आपको फायदा होगा और प्रैक्टिस करने का। ओके, जय सच्चिदानंद। दीपकान जी, आर यू देयर? दीपकान जी। જય સચ્ચિદાનંદ. નિશાનજી, હમણાં આપણે 5 ઇન્દ્રિયોના જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાનજી, આપણે હમણાં 5 ઇન્દ્રિયોના ભોગવટા ને એ ભોગવટાને આપણે યોગપૂર્વક જાગૃતિપૂર્વક છૂટા રહીને આપણી અંતરાલના દશામાં પ્રજ્ઞાશક્તિના પ્રકાશમાં છૂટા રહીને જોવાનો એક આખો દિવસનો પુરુષાર્થ રાખ્યો છે. તો એ આ કાન અને કાનને લાગતા આવતા ભોગવટાને તમે કેવી રીતે આખો દિવસ એને સામાયિકમાં લો છો એ કાન જરા અને જણાવો. કાન જ હમણાં એકલું કાન જ લઈએ છીએ આપણે, બીજા આગળ લઈ લીધા છે, પણ પેલું બરાબર છે, હમણાં આપણે બરાબર. કાન કાન માટે વિશેષ રાખીએ છીએ ફોકસ. હા, એટલે કાન તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કાચા કાનના દાદાએ કહ્યું કાચા કાનના આપણે નહીં રહેવાનું. આ કાચા કાનના થવું એનો મતલબ શું પણ? કાચો કાન એટલે શું છે કે તમે દાદા કે છે ને કે કંઈ પણ આપણે સાંભળીએ છીએ તો સાંભળ્યું એ કાને સાંભળ્યું છે. એટલે કાનને આપણે જ્ઞાન શું કે છે કે તમે સાંભળ્યું છે કાનને, પણ એમાં સાચું માનો છો. કાને સાંભળ્યું, જ્ઞાને શું કે છે કે વાણી ટેપ રેકોર્ડ છે. કાનને તો ખબર નથી, કાને સાંભળ્યું. એટલે કાચા કાનના એટલે સાંભળ્યું, પણ તમે સાંભળ્યું ત્યારે દાદાનું જ્ઞાન શું એપ્લાય કર્યું. દાદાનું જ્ઞાન નથી એપ્લાય કરતા, એ કાચા કાન. કાચા કાન એટલે કાન કાચા નથી, પણ સાંભળવાનું જે આવે છે આપણને એનો જ્ઞાનનો ઉપયોગ ની બહાર રાખીએ, જ્ઞાનનો ઉપયોગ ના રાખીએ સાંભળવામાં, એ કાચા કાનના. હું મારી આ તો ડેફિનેશન કાઢી કે દાદા ભગવાન શું કે છે કે તમારું જોયેલું આંખનું એ પણ સાચું ના માનતા. કોઈ કાન બંબેરી કરી, કાન બંબેરી એટલે પાછું જુદું આવ્યું. આ ભાઈ આવું કહેતા હતા તમારા માટે, એ કાન બંબેરી. એટલે કોઈ પાછા ડાયરેક્ટ તમને કહી ગયું કે આ ભલી વાર વગરનું છે, આ મજા નહીં આવે, આમાં મજા નથી, આ બહુ સરસ છે, આ ખરાબ છે. એ બધું કાન સાંભળે છે. પણ આપણે કાચા કાનના એટલે જ્ઞાન શું કહે છે, એમાં કેટલું વ્યાજબી છે. દાદાએ તો કોઈ જ્ઞાન તો કે છે કે આખું જગત નિર્દોષ છે. દાદા કે છે વાણી તો ટેપ રેકોર્ડ છે, સાંભળવામાં આવે છે વાણી, અકર્તા છે. એટલે જ્ઞાને કરીને આપણે, અને આજે સાંભળવાથી બધા યુદ્ધો થયા ને. પેલું કે છે મહાભારતમાં આંધ્રાના આંધ્રા કયું સાંભળ્યું કોણે? કાને સાંભળ્યું. એટલે કઈ પણ વસ્તુ આપણે સાંભળીએ છીએ આપણને વધારે માન મળે તો ભાઈ આપણને બહુ ગમે, કારણ કે આપણે કાનથી સાંભળ્યું. વાવ, આપણી વાવા થતી હોય તો કાનથી સાંભળ્યું. કાન આપણી વાવા થતી હોય, આપણને ગમ્યું, એ કાચા કાન. એટલે દાદા કે છે માનની ભિખારીપણું પણ કાનથી સાંભળ્યું. તો દાદા કે છે માનનું ભિખારીપણું, હમણાં જ વાત થઈ, માનની ભિખારીપણું જ્યાં એ મોટી વીકનેસ છે કે છે. એટલે ત્યાં જ અપમાનનો ડર છે. એટલે આ તો મને એવું લાગે છે કે આખા દિવસમાં કઈ પણ કોઈ બોલે છે તો આપણે કાનથી સાંભળીએ છીએ, અને પઝલ ઊભા થાય કે ભાઈ આવું કેમ બોલ્યા, તમારે આવું નતું બોલવા જેવું, તમે વચ્ચે કેમ બોલો છો, તમે મને કેમ સલાહ આપો છો. મેં કઈ માગી સલાહ, બોલતા નથી, અંદર ઊભું થાય છે. એટલે સાંભળવાનું. તો દાદા કે છે સામે વાળો તો એક કેવું છે
એ ચાવી આપેલું રમકડું છે. હવે ચાવી આપેલું રમકડું ઊંચું નીચું થાય, એને રોબર્ટ કંઈક બોલે, તમારામાં અક્કલ નથી, તમે આવું બધું બગાડી નાખ્યું, તમે આવી ભૂલો કરો છો, તો આપણને અસર થતી નથી. એટલે દાદાએ શું કહ્યું, સામેવાળો એ ચાવી આપેલું પૂતળું છે, એનું પેલો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, મિકેનિકલ આત્મા જે ગણો તે આત્મા તો એમની જગ્યા જ છે પેલો દસ. એટલે કઈ પણ આપણે સાંભળીએ છીએ ને બધા પઝલો ઉભા થાય છે કે સાંભળવાનું બંધ કરી દેવાનું, એટલે ના, કાનનો સ્વભાવ છે સાંભળવાનો. પણ આપણો સ્વભાવ શું છે, જ્ઞાને કરીને એને એક એક વસ્તુને લેવાની છે. જોવામાં પણ આપણે જ્ઞાને કરીને લેવાનું છે, એ આપણો સબ્જેક્ટ હમણાં નથી એટલે આપણે નથી લેતા. તો કાને કરીને આપણે જે સાંભળવામાં આવે છે એમાં આખા કે છે પઝલો, તમે જ્ઞાન ના વાપરો તો કાચા કાળના કે મને અંદર એવું સમજાય છે. દાદા એક કે છે ને કોઈ ભાઈ તમે આમ કરવાનું છે, તો આપણે તો એના કયા પ્રમાણ કરીએ, પણ દાદાનો આશય શું હોય છે, એટલે તમે તમારી રીતે કોઈ કહે કે તમે આમ કરો ને તમે એના પ્રમાણ કર્યું, તો વ્યવહારમાં એ શોભે નહીં. આપણું અંદર તમે આમ કરો તો બહુ સારું, મને હેલ્પ કરો તો બહુ સારું, પણ કઈ બાબતમાં હેલ્પ કરવાની, કેટલા અંશે હેલ્પ કરવાની, એ અંદર કાને સાંભળ્યું. પણ આપણે અંદર આપણી અંદર ભીખ છે ને, માનની ભીખ, લોભની ભીખ, કે મને પૂજાવાની ભીખ, કે અંદર વિષયની ભીખ, કે અંદર બધી ભીખો પડી છે. પેલા સામેવાળા તો બધું કીધું, લાગણી વશ થઈ ને આપણે એની વાણી સાંભળીએ ને આપણે એમાં લાગણી વશ થઈએ, કોઈ પણ વસ્તુમાં એક્સાઇટમેન્ટ થઈએ, લાગણી વશ થઈએ, રાગ ઉભો થાય કે દ્વેષ ઉભો થાય, ડિસ્ચાર્જ, એ બધી વીકનેસ છે કાચા કાળના. એટલે વીકનેસ એટલે કાચો કાળના, એવું મને સમજાય છે. ભાઈ તમને કહેજો તમારો વ્યૂ પોઈન્ટ. એટલે આખો દિવસ આપણે આપણા કાન સાંભળીએ. ખુલ્લે. હા બોલો. આને સાંભળેલું માની લેવું. ગીતાબેન ને પછી દીપક તમે બોલો. ગીતાબેન બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. આવે છે અવાજ, આવે છે મારો? હા આવે છે, આવે હા, છે. જય સચ્ચિદાનંદ. નમસ્કાનંદ. જય સચિદાનંદ. હા, જય સચિદાનંદ. આજે એક એક્સપિરિયન્સ આજે મને થયો, એના પર વાત કરું છું. એક કાનમાં જે સાંભળીએ છે, કાનથી જે સાંભળીએ છે ને એની અસર મન પર આવે છે. એવો મને એક્સપિરિયન્સ આજે થયો કે મને છે ને થોડુંક સ્પાઇનમાં પ્રોબ્લેમ છે, તો એટલે વધારે રેસ્ટ કરવાનો કહ્યો છે, તો રેસ્ટ કરી દીધું. ને મારા દેરાણીનો બપોરે ફોન આવ્યો કે કેવું છે, મેં કીધું દુખાવો છે હજુ મને. તો એણે એવું કીધું કે તો તમે ઓપરેશન કરાવી દો ને, શું કામ આટલા હેરાન થાવ છો એમ. તો મારે ઓપરેશન કરાવવાનું કોઈ પ્લાનિંગ નહોતું, પણ મનમાં એટલું બધું ચાલ્યું કે મને લગભગ અડધો પોણો કલાક તો સતત એ ચાલ્યું. પછી એ વિચારતા મને ઊંઘ આવી ગઈ. તો ઊંઘી ગઈ, પછી ઉઠીને ત્યારે ખબર પડી કે ખાલી આટલો 2 શબ્દો કીધા, એનું આટલી બધી અસર એના પર, બધું બહુ જ વિચારો ચાલ્યા મારા. પછી માંડ એમાંથી નક્કી કર્યું કે ના, આ તો એણે કીધું અને મારે એવું નક્કી નથી કરવાનું, આગળ હજુ જુઓ ને શું આવે છે એમ. તો એ માંડ હજુ સમાધાન આપ્યું ત્યાં મારા ભાઈનો ફોન આવ્યો મહેસાણાથી. મને કે કેવું છે એમ. મારે ફરી જોઈન થવું પડશે. ના ચાલુ છે અવાજ તમારો. ચાલુ છે, બરાબર છે. હા, મારો ફોન આવી ગયો ને, અવાજ મને નથી આવતો. હા વાંધો નહીં. હા, ઓકે નાઉ. ફરી જોઈન થવું છું. ના અવાજ આવે જ તમારો, વાંધો નહીં, તમે એટેન્ડ કરી દો ફોન. ગયા એટેન્ડ કરવાનો. એમને નહીં સંભળાતું હોય. હા એવું છે. બોલો. એમનો અનુભવ સરસ હતો, ખાલી આટલું જ કહ્યું. એમ કોઈ કહી જાય ને તમારા ભલીવાર નથી, આટલું જ આપણે સાંભળીએ છીએ કાનથી, તો આખી રાત આપણને શું થાય, ચાલો હું આટલું ઘસયો એના માટે.
મહેશ આનંદજી, મારે ફોન હા આવી ગયો હતો એટલે મને સંભળાયું નથી. વાંધો ના, એટલે આ જે હા, તમારો જ અનુભવ કહેતો હતો કે તમે કહ્યું ને, પેલા કહ્યું ને આટલું ઓપરેશનનું, એવું કોઈ કહે ને તમારા કઈ હા ભલી વાર નથી. આટલું જ કોઈ કહે ને તો આખી રાત ઊંઘ ના આવે. આટલું હા તમે ઘસાયો એના માટે, ને એક એક નાની ભૂલ તમારી હા બતાવીને તમને બદનામ કરે, કે કઈક ખોટું હા, તો કાપણ પણ કાઢે, વાંધો ના આવે. તો પણ કાનથી સાંભળ્યું ને તમે કે ભાઈ હા કોકે કહ્યું, પછી ડાયરેક્ટ ના હોય, કોકે પાછું કહ્યું હોય કે ભાઈ આ હા, બેન આવું કહેતા હતા તમારા માટે. એટલે આ એટલે આ હા, બોલો, તમે બીજો અનુભવ કે કહેતા હતા. એટલે તો એને હા, ફોન અત્યાર આવ્યો. સુધી એટલે આ ઓબ્ઝર્વ જ નતું કર્યું. હા, ભાઈનો ફોન આવ્યો ને તો એ બી એણે એવું કીધું કેમ કે આટલી બધી હેરાન થાય છે તો ઓપરેશન કરાવી દે ને. તો પાછું ફરીથી ચાલ્યું. પછી નક્કી કર્યું કે આ બધા કહે છે પણ તને શું, તારું જો ને, તું તારું સંભાળ, પેલા તને શું પ્રોબ્લેમ છે, હજુ તું વેઇટ કર થોડું, પછી આ બધું આગળ ડિસીઝ વિચારે. એમને કોઈએ કીધું ને તો શું કામ આટલું બધું લાંબુ વિચારે છે. પછી થોડું મગજ મનમાંથી બહાર નીકળ્યું અને એમાંથી સેટ થયું મગજ. એટલે એમ કે કહેવાનો મતલબ કે કોઈ મને કાને કંઈ પણ સંભળાય છે તો પછી એનું મન પર એટલી બધી અસર આવે છે કે કેટલું ચિતરાઈ જાય છે એમ. બરાબર છે અનુભવ. એટલે હા, એટલે આ રીતે અનુભવ થયો આજે મને આ. સરસ સરસ. ખ્યાલ બહુ આવ્યો ને? બહુ એટલે જ્ઞાન વાપરવાનું, કાન સાંભળવાનું કામ કરવાનું. તો આપણે જ્ઞાન શું કે છે હમ એને સાચું નહીં માનવાનું. આપણે આપણું જ્ઞાને કરીને એનો ઉપાય કરવાનો, કે ભાઈ આ આવ્યું છે એટલે તો હવે મેન્ટલી કોને અસર દીધું થતી છે? હોય. હે, હમ શું કહ્યું? મેન્ટલી અસર થતી હોય ને એવું મને લાગ્યું હા, કે એટલે સાંભળ્યા આપણે પછી. કહેવાનું, ગીતાબેનને આવ્યો છે મેસેજ, નોટેડ. કોઈ વિચાર ડિપ્રેશન હમ નો આવે તો આપણે શું કરવાનું? એને ડિપ્રેશન નો કોઈ વિચાર આવે અવડો, હમ ઉપરથી ભૂસકો મારવાનો હમ વિચાર આવે દાદા કે અગાસીમાં, તો આપણે હમ વિચારને હંગરી રાખવાનો, નું સાંભળવાનું નહીં કે ના, એ વિચાર નહીં આવ્યો જ્ઞેય છે ને આપણે એને જાણનારા છે. એ કહેનારો બોલનારો છે, કાન સાંભળનારો છે, અને એ સાંભળનારા એ જ્ઞેય છે, આપણે જ્ઞાતા છે એના. આજે ને આજે ઓપરેશન હમ કરવાનું છે, તમે સુઈ જાઓ. હવે એ વિચારને હમ ચગદોડે, એ મન એક જ્ઞેય છે. મનમાં જે વિચારો આવે છે સાંભળવાથી, એ મન એ આપણે હમ નથી. આપણે મનથી જુદા છે. હા એ જ્ઞેય છે, આપણે એને જાણનાર. સારું નોંધ કર્યું. ઓકે, હા કેવા પછી હમ બધું કરીશું એમ કરીને સમયને હા આપણે જ્ઞાને કરીને એ સંજોગને નોંધવાનો છે. કાન તો એટલે બધું અડધો સાંભળ કલાક તો સાંભળ આગળ કરશે. અડધો કલાક આપણે આગળ કશું દાદા કે છે, વિચારવા જ ના દીધું. હા, એટલે દાદા કે છે ને 1 મિનિટ કે 2 મિનિટ કે 5 મિનિટ થી વધારે વિચાર ટકે ને તો આપણે એને ગેટ હમ આઉટ કરી દેવાના. એટલે ભાઈ એ હમ જ્ઞેય છે એમ કરીને જ્ઞાતા દ્રષ્ટાનો પ્રયોગ રાખવાનો. એ એક વિચારને 2-5 મિનિટ થી વધારે રાખવાનો જ નહીં. તો સમજવાનું કે આ મન હમ ચકડોળે ચડ્યું છે, આઈને જતો રહ્યો જોઈએ હા વિચાર. દાદા કે છે ને, અમે લગ્નમાં ગયા હોય તો આમ કેવો સેકન્ડ કરતા હોય હાથ, અથવા આપણે જય સત્યાન હમ બધાને કરતા હોય, એવા વિચારોને જય હમ સત્યાન કે ફટોફટ જવા જોઈએ. ઉભો રહે ને એટલે સમજવાનું કે આ વંટોળ આવ્યું. પેલું કહે છે ને હા કે હા, સાયક્લોન. હા હા એટલે સમજી હમ જવાનું કે આપણે એનાથી જુદા છે, ના ઊભું રહ્યું છે. એટલે હમ સાંભળવાથી અંદર મન ઊભું થાય. તો મન આમે વિચાર ના સાંભળીએ તોય આવે એવું, સાંભળવાથી પછી ઇફેક્ટ મન પર આવે, બુદ્ધિ પર આવે, અંતસ્કરણ પર આવે. હમ તે વિચારને હા આપણે જોવાના. ઓહો, આ ભાઈ કઈ ગયા ને, નોટેડ. એટલે દાદા કે છે અમને ગમે હમ તેવા સંજોગો આવે ને, અમે હાલી ના જઈએ કે. દાદા ભગવાને ના કહ્યું મહુડીમાં, તમે હમ લોકોને ઠગવાનું છોડી દો, દાદા ભગવાન કેવડાવો છો, તમે બંધ કરો, હા તમારા ભક્તોને કહી દો કે દાદા દાદા ભગવાન ના કે અંબાલાલ, આવું તો બહુ આવેલું, કાનથી સાંભળવામાં આવેલું ને એમને. પણ દાદા એ આખું વિજ્ઞાન જ હમ કે છે, કહેનારો જુદો છે, સાંભળનારો જુદો છે. એ કોને કે છે? દાદા ભગવાને નથી કહેતા, દાદા ભગવાનને ઓળખતો નથી. એવું કોઈ બી જ્ઞાન આપણે એપ્લાય હમ કરીએ ને તો પેલો અડધો કલાક આપણે મૂંઝવણને, ગૂંચવામણને,
પેલું ગુંગળામણ કે છે, સફોકેશન કહીએ ને, અડધો કલાક સફોકેશન ચાલી ને હા તમને, હા બધું નીકળી જાય. હા ચાલે. દાદા તો એટ એ પણ ટાઈમ, છે ને એટલે હા અડધો કલાક જે ચકડોળે મન ચડ્યું ને પછી કશું હા વિચારવાનો કોઈ સ્કોપ જ નતો આપ્યો મનને. હા, પણ અડધો કલાક ચડ્યું ને, એટલે તે વખતે એ કેમ બરાબર ચડ્યું થયું. કે મને થયું, મને કહી ગયા, હા સાંભળ્યું કાને, બસ કાને હમ સાંભળ્યું, પણ આ અંદરથી શું થાય, મને કહી ગયું, મને કહી ગયું, મને કહી ગયું, મન બૂમો પાડે. એટલે દાદા કે છે દુશ્મન બહાર હા નથી, પેલો કહીને જતો રહે, પણ મન તમને પજવ્યા કરે, મને કીધું, હા મને કીધું, મને. તો જ્ઞાન શું કે છે? હા તે જ્ઞેય છે, મન પણ જ્ઞેય છે, હમ એટલે મનનું સંભળાય નહીં. હા એ કોને કહ્યું? કે ગીતાબેનને કીધું, ગીતાબેનના કાનને કીધું, હમ ગીતાબેનને કીધું, હું તો શુદ્ધ આત્મા છું. આ દાદા ભગવાનને હમ કહેનારા કેટલા નીકળ્યા, તમે જગતને ઠગવા નીકળ્યા છો, ભગવાન કેવડાવો છો, આવું તો હા બહુ આવ્યું. હમ હા હા તો પછી જ્ઞાનનો કેવો એમને કેવું રહેતું હશે છૂટાપણું, કોને કે છે? દાદા ભગવાનને હમ ઓળખતો નથી, એનો શું વાંક છે? એ જેને ઓળખે છે એને કે છે, એ તો અંબાલાલને કે છે ને, એ હમ ઠગવા બેઠા છે, એને બિચારાને ભાન નથી, એના માટે કરુણા રાખતા હતા. એટલે આ કોઈ અવળું બોલી જાય ને, એના માટે આપણે કરુણા ના રખાય, ના આવડે પણ ભાવ રાખવાનો કરુણા. કરુણા એટલે શું? એને હા દોષિત નહીં જોવાનો, એનું કલ્યાણ થાય. આવું ઝેર પીને નીલકંઠ થવાનું છે. દાદા ભગવાને આખા જગતના ઝેર પીને નીલકંઠ થયા, ના તપ આવ્યું. જો હમ ગીતાબેન કેટલું સરસ તપ આવ્યું હા તમને. એટલે નીકળી જવાનું મનના હા ફરિયામાંથી, અંદર મનમાં ઊભું થાય. જ્ઞાન એપ્લાય કરો ને, હા એ કોને કીધું? ફાઇલ નંબર 1 ને કીધું, હું કોણ, શુદ્ધાત્મા, હમ કેનારો કોણ, વ્યવસ્થિત શક્તિ, ટેપ હમ રેકોર્ડ. એ દાદાનું જ્ઞાન એવું છે ને, ગમે તેવા સંજોગોમાં તમારું સફોકેશન, ડિપ્રેશન જે અંદર ઊભું થાય છે, બધું નીકળી જાય. જે મૂંઝામણ હમ બધી ઊભી થાય છે, બધું નીકળી જાય દાદાનું હા જ્ઞાન એપ્લાય કરો તો. ઇરિટેશન કહીએ, ઇરિટેશન, હા કોને થયું હમ ઇરિટેશન? હા ગીતાબેનને થયું. કરનારો કોણ? હમ એટલે કે એની અણસમજણ, પોતાની જ અણસમજણથી આપણને એક્સાઇટ કે ઇરિટેશન કે હાલી જવાય છે. હાલનાર આપણે નથી, આપણે શુદ્ધ હમ આત્મા. એમ કરીને નીકળી હમ જઈએ, નહીં તો અડધો પોણો કે આખી રાત તમને મન સુવા નહીં દે, 2-3 કલાક સુધી સુવા નહીં દે. આવું આવશે તારે હા અવળું, બરાબર? હમ હા બરાબર વેરી છે. ગુડ ગીતાબેન, બહુ સરસ તમારો એક્સપિરિયન્સ. દીપકભાઈ શું કહેતા હતા હા તમે? યા એટલે આપણે શું કહીએ, કાને સાંભળ્યું ને આપણે માની લીધું ને એની અસરમાં આવી ગયા, એને કાચા કાનના થયા કહેવાય. કાને સાંભળ્યું અને વિવેકથી એને સમજીને રહ્યા તો એ કાચા કાનના ના થયા. એટલે કોઈકે મને કીધું મહેશ આનંદી આવા, અને મેં માની લીધું ને પછી હું મહેશ આનંદી જોડે હું વ્યવહાર કરું તો એને કહેવાય કે આ તો કાચા કાનના થયા. કોઈ બે વાત શું કહી દીધી, તમે જાણતા નથી મહેશ આનંદજીને? કોઈની બે વાત સાંભળીને તમે એને માની લીધું કે મહેશ આનંદી આ વાત છે કરીને? એટલે આવી તો કેટલીય વાતો આપણી જોડે આવતી હોય કેટલા લોકોની. તો ત્યાં એટલે આ કાનની ઇન્દ્રિયને તો બહુ વિવેકથી સંભાળીને એના ભોગવટાને એની લપેટમાં નહીં આવીને છૂટા રહીને બેલેન્સ રાખીને એની અસરમાંથી મુક્ત રહીને એના ભોગવટાને સમજીને છૂટા રહેવાની છે વાત આખી પુરુષાર્થની. એટલે તે એક જ વસ્તુ આપણે વારે વારે કહીએ છીએ કે સંજોગના ધક્કા વખતે તે સમયે જાગૃતિ ના રહે એ બની શકે છે, કારણ કે નિકાચિત કર્મનો ભોગવટો છે. નિકાચિત એટલે ભોગવીએ છૂટકો એમ કહે ને. પણ પછી એ વાતને આપણે સારી રીતે સમજીને સમાધાન મેળવી લેવાનું અને હકીકત સમજી લેવાની કે વાત શું છે. એટલે પછી એ વાત જ્યારે બીજી વખત આવે ત્યારે પણ તો આપણે બિલકુલ સ્વસ્થ રહી શકીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. મહેશાનજી પ્લીઝ શ્રીમંત હા. બોલાવો. ગીતાબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો
नमो वीतरागाय વિતરાગાય नमो अरिहंताणम નમો અરિહંતાણ नमो सिद्धाणम નમો સિદ્ધાણમ नमो आयरियाणम નમો આયરિયાણમ नमो वज्रायाणम નમો ઉવજાયાણમ नमो लोये सव साहुणम નમો લોય સવ સાહુણમ ऐसो पंच नमुकारो એસો પંચનમુકારો सौवपावपणासणो સવ પાવપણાસણો मंगलाणं च सौवेसि મંગલાણ ચ સવેસી परमं हवै मंगलम् પડમં હવૈ મંગલમ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ जय શ્રી सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ કાલનો પ્રોગ્રામ આપણે થોડો જોઈ લઈએ. સવારે 6:30 પ્રાર્થ વિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. દિવસ દરમિયાનના પુરુષાર્થમાં આપણે આજ રાખીએ છીએ. કાને 5 ઇન્દ્રિયના ભોગવટામાં ખાસ કરીને કાનથી આપણે જે બધા ભોગવટામાંથી પસાર થઈએ છીએ એને ઉપયોગપૂર્વક છૂટા રહીને આપણી અંતરાત્મા દશામાં શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞા શક્તિના પ્રકાશમાં આપણે એને જોઈશું, સમજીશું, ઓળખીશું અને છૂટા રહીને એ ભોગવટાને જોઈને એમાંથી સારી રીતે પસાર થઈશું અને આપણે આપણું સુખ